NCCIA نے ایک بڑا زبردست ایک بین الاقوامی منظم جو سائبر فراڈ کا گینگ ہے وہ بسٹ کیا ہے. یہ فراڈ جو سائبر کرائم کا جو گینگ ہے یہ مختلف سفارت خانوں کی شناخت استعمال کر کے سادہ لوگ پاکستانیوں کو اور بین الاقوامی جو شہری ہیں ان کے ساتھ فراڈ میں ملوث تھا. اس کارروائی کے دوران 12 افراد ہم نے گرفتار کیے ہیں. یہ جو گروہ ہے یہ ملزمان یہ اٹلی، جرمنی، سعودی عرب اور دیگر ممالک کے سفارت خانوں کے امپرسونیشن اور ان کے ساتھ اور ان کے اہلکاروں کے ساتھ اور پاکستانی شہریوں کے ساتھ فراڈ میں ملوث تھا. یہ گینگ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فیک گوگل بزنس پروفائلز، فشنگ ای میلز، فیک ویب سائٹس اور دیگر نوعیت کے سرکاری دستاویزات کے ذریعے شہریوں کو دھوکہ دیتا تھا. ملزمان جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سفارت خانے کے نمبروں کو اپنے نمبروں کے ساتھ منسلک کیا ہوا تھا. وہاں پہ ڈائیورشن لگوا کے جو کالز ان سفارت خانوں کو جانی تھی وہ ان کی ٹیلی فون نمبرز پہ موصول ہوتی تھیں. اسی طریقے سے انہوں نے سفارت خانوں سے ملتی جلتی ویب سائٹس بنائی ہوئی تھی جس پہ اپنے واٹس ایپ نمبر انسٹال کیے ہوئے تھے جس کے ذریعے لوگوں کا استحصال کیا جاتا تھا اور فیک سفارت خانے کے اہلکار بن کے ان کے ساتھ فراڈ میں کیا جاتا تھا. اس کارروائی کے دوران ہم نے بیشتر موبائل ڈیوائسز، دیگر ڈیوائسز، فیک گوگل بزنس پروفائلز، فشنگ ایپس، فیک اپوائنٹمنٹ لیٹرز، PTCL کا ریکارڈ اور دیگر اہم ڈیجیٹل شوائد جو ہے وہ قبضے میں لیے ہیں. اب تک کی جو ابتدائی تحقیقات ہیں اس میں یہ سامنے آیا کہ 2019 سے یہ گینگ فعال تھا. اور آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ یہ اس سلسلے میں اس حوالے سے ایک بہت بڑی کارروائی ہے کہ مختلف ایمبیسیز نے آفیشلی بھی NCCI کو اپروچ کیا تھا کہ اس طرح کا ایک گینگ متحرک ہے پاکستان میں جو شہریوں کے ساتھ لوٹ مار میں ملوث ہے. NCCI اس کی بھرپور ان کی تحقیقات کر رہی ہے اور جو ان کے دیگر ساتھی ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے جاری ہیں. یہ ایک بڑا زبردست ہم نے قدم NCCI کی کامیابی ہے جس میں ایک ایسے گروہ کو ہم نے بسٹ کیا ہے جس کے تانے بانے اور جن کا شکار نہ صرف پاکستانی شہری تھے بلکہ بین الاقوامی شہری بھی تھے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری جو ہے یہ میڈیا آپ کی وساطت سے یہ شہریوں سے درخواست ہے کہ جب ہم نے ان کے موڈس اپرنڈی کا پتہ کیا تو اس میں ہمیں یہی چیز نمایاں سامنے آئی ہے کہ جب کبھی بھی جو آپ نے ایمبیسی کو اپروچ کرنا ہے تو ان کے آفیشیل نمبر پہ اپروچ کریں. اور اگر آپ کو آفیشیل نمبر سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تو ان پرسن آپ جا کے اپروچ کریں. اس طرح کے تمام نکال سے ہوشیار رہیں. اور یہ ایک کامیابی میں سمجھتا ہوں چونکہ پاکستان میں مور دین 10 ملین ایکسپیٹریٹس ہیں اس حوالے سے یہ ایک بڑی نمایاں کامیابی ہے جس میں ہم نے ایک میجر گینگ کو بسٹ کیا ہے جو باہر جانے کے خواہش مند افراد جن کی اسپاؤزز باہر ہیں جو ویزا لگوانا چاہتے ہیں یا دیگر کسی اور وجہ سے ایمبیسیز میں جانا چاہتے تھے ان کے ساتھ لوٹ مار میں ملوث تھا. بہت بہت شکریہ جی. سر یہ بتائیے گا پلیز کہ یہ جو ملزمان آپ نے پیش کیے ہیں یہ ینگسٹرز لگ رہے ہیں جو آپ نے 12 ملزمان کا آپ نے جیسے بتایا کہ گرفتار کیا گیا یہ کس ایج گروپ سے ان کا تعلق ہے اور دوسرا آپ نے بتایا کہ 2019 سے یہ گینگ ایکٹیو تھا 2019 سے لے کے اب تک اپروکسیمیٹلی کتنے کا فراڈ اس گینگ نے کیا؟ دیکھیں یہ جو تمام ملزمان ہیں یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی 25 سے 35 سال کی عمر کے درمیان ہے اور کچھ اس سے کم بھی ہوں گے. تمام ملزمان اس وقت ریمانڈ پہ ہیں. یہ NCCI گجرانوالہ نے کارروائی کی ہے اس میں ہم نے تمام ملزمان آپ کے سامنے پیش نہیں کیے. تمام کے تمام اس وقت ریمانڈ پہ ہیں. ان سے ریکوری کا عمل بھی جاری ہے. ہم مختلف ایمبیسیز کے ساتھ ہم رابطے میں بھی ہیں. ہم نے انہیں آفیشیل جو ہے وہ انٹیمیشن بھی دی ہے تاکہ ان کے پاس جو شواہد ہیں وہ ہمارے سے شیئر کریں. ابھی ہم ان سے ایک انگلش ڈرافٹ بھی شیئر کریں گے. اور اسی سلسلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ نہ صرف یہ ایمبیسی اس طرح فراڈ میں ملوث تھے بلکہ انہوں نے مختلف زبانوں پہ عبور رکھنے والے بندے بھی رکھے ہوئے تھے. اس حوالے سے سنگاپور پولیس کی ایک یونیفارم بھی برآمد ہوئی ہے جس میں یہ سنگاپور کے جو خواہش مند وہاں پہ جانے والے افراد تھے ان سے سنگاپور وہاں پہ جو لینگویج بولی جاتی ہے اسی لینگویج میں بات کر کے وہی ماحول کریٹ کر کے ایک فیک ایمبیسیز انہوں نے بنائی ہوئی تھی. تو یہ سارا اس حوالے سے گینگ اس حوالے سے یہ کائنڈلی کلیئر کر دیں انٹرنیشنلی ان کا ایکسپوجر آپ بتا رہے ہیں کہ اپنی ایمبیسی بھی انہوں نے جنریٹ کر رکھی. یہ جو لوگوں سے پیسے آتے تھے وہ ڈالرز میں لیتے تھے ان میں انہوں نے کون کون سے اکاؤنٹ جنریٹ کیے ہوئے تھے؟ آیا ہمارے لوکل بینک جو اکاؤنٹ اس میں ہیں یا ان کی اپنی کوئی اس میں کوئی بٹ کوائن میں آپ کو بتاتا ہوں. بالکل بڑا اہم سوال ہے. اس میں بیسک میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح فیک
वेब साइट्स इन्होंने बनाई हुई थी। अगर एम्बेसी, इटालियन एम्बेसी की एक वेबसाइट है तो उसमें फ़र्ज़ करें एक इंसान इन्होंने अपना ऐड करके उसी से मिलती जुलती वेबसाइट बनाई हुई थी, सेम वही रेप्लिकेट। उसमें इन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर अपना इंस्टॉल किया हुआ था। उस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए फिर ये मुख्तलिफ जो सारिफीन है उनसे ये रब्ता करते थे। अगर किसी को शक हो जाता था तो फिर इटालियन एम्बेसी का जो ओरिजिनल नंबर है उसकी स्पूफिंग की हुई थी इन्होंने, उस नंबर से कॉल आ जाती थी। फिर ये जो पैसे हैं ये मुख्तलिफ तरीक़ों से मंगाते थे। ये जायज़ कैश के ज़रिए भी मंगाते थे, जो लोकल जो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स हैं उनमें ये मंगाते थे। कोई किसी फ़ॉरेन अकाउंट वगैरह में ये पैसे नहीं मंगाते थे, ना ही बिटकॉइन में। ज़ाहिर है जो एम्बेसी का एक SOP है वो उस तरह से नहीं है, इसको उस प्रोसेस को पूरा रेप्लिकेट करते थे। क्या काम अभी तक इन्होंने सर्विसेज क्या फराहम कर रहे थे? क्या जाली वीज़ा देते थे, नौकरियां देते थे, डिग्रियां देते थे? असल इनका था क्या, कारोबार क्या था? अली साहब इसी पे ऐड कर लें कि एक जो फराज साहब ने बात की है, दूसरा ये भी ऐड कर लें कि अभी तक क्या इन्होंने कोई इस हवाले से कोई लोगों को भी बाहर भेजा है? अगर भेजा है तो उनकी तादाद कितनी है? असल काम क्या था, कारोबार? देखें, इनका असल काम तो सारा जेली था। इनका काम था कि जिस तरह अगर किसी की शादी हुई है बैरून मुल्क और किसी खतून ने जो है वो खामद के पास बाहर जाना है, उसने वीज़ा अप्लाई की है, उससे ये रब्ता करने के बाद उससे ये पैसे मंगवा लेते थे। फिर ये हीले बानों से और पैसे मंगाते, जितना देर तक ये पैसे मंगा सकते थे ये उनसे पैसे मंगाते थे। किसी की वीज़ा एक्सटेंशन होनी है उससे पैसे मंगा लिए और उसके बाद में उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया या उसको फिर वो उसका फ़ोन ही ना उठाया। तो ये टिपिकल एक फ़्रॉड का तरीका है। और कुछ हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं जिसमें इन्होंने जेली वीज़े बना के, आपको पता है ये वीज़ा का एक वो पैटर्न है पूरा, उसी तरह का एक जेली वीज़ा बना के आजकल चैट GPT और मुख्तलिफ इस तरह की जो टूल्स मौजूद हैं जिससे वो जेली वीज़ा जनरेट करके वो भिजवा देते थे। एक फैमिली से एक जो है वो मुल्क का पूरा उनको जेली नेशनलिटी दी हुई थी और उसके उस ज़मन में फिर उनसे मज़ीद पैसे तकाजे कर रहे थे। इस तरह की चीज़ें निकली हैं। अच्छा अली भाई ये बताइए कि 2019 से आपने बताया कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, उस दौरान ये कितनी बार पकड़े जा चुके हैं और कितने अब तक लोगों से ये इनका पहला रिकॉर्ड हैं? एक ये सवाल का बताइए। फर्स्ट टाइम एक ये सवाल सर बताइएगा। दूसरा ये बताइएगा जो सिंगापुर पुलिस ने भी NCCI को बड़ा अप्रिशिएट किया, वो तो आप बता नहीं रहे, वो भी ज़रा डिटेल से बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक जो मैटर है जो उन्होंने हाईलाइट किया। सिंगापुर जो नेशनल पुलिस है उसकी तरफ से एक प्रेस रिलीज़ भी जारी होएगी। एक हमने जो गैंग पकड़ा है टाइकून 2FA, जो ऐप बना के जो पाकिस्तानियों का और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी शहरियों का जो इस्तेसाल करते थे, जिसके ज़रिए उनका मोबाइल फ़ोन हैक हो जाता था, लैपटॉप हैक हो जाता था। एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऐप है ये जो पूरी दुनिया में आलमोस्ट बैन है, टाइकून 2FA के नाम से। वो टाइकून 2FA, जी टाइकून 2FA आपको प्रेस रिलीज़ दे देंगे, उसमें सारी तफसीलात मौजूद होंगी। ये जो ऐप है ये टेलीग्राम के ज़रिए फ़रोख्त होती थी। टेलीग्राम के ज़रिए फ़रोख्त करने के बाद इसमें अब तक की जो तफसीलात हैं 96,000 के करीब ये ऐप फ़रोख्त कर चुके थे, जिसमें बेशतर जो है जो इनके गाहक थे वो USA से तल्लुक़ रखे थे। फिर जो नियर ईस्ट यानी अब ये समझ लें कि जापान, चाइना, सिंगापुर, उसके बाद मिडल ईस्ट के कुछ इनके जो थे, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, तो उस हवाले से वो पूरी तफसीलात मौजूद हैं। हमने वो आपको एक उसमें वो दे देंगे सारी चीज़ें। तो उस हवाले से ये सारा जो एक बड़ा अहम संग मील है जिसकी शिकायत बाज़ाब्ता तौर पे सिंगापुर की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से की थी, वो हम उनके साथ लाइजान में हैं। जब हम अपनी एक जो इंशाल्लाह ये सारी तहकीकात मुकम्मल कर लेंगे तो इन सिंक विद NCCI, ये सिंगापुर जो नेशनल पुलिस है वो भी हमारी ये इसके इस गैंग के हवाले से क्या आपको भी कोई खुद से इतला थी या सिर्फ सिंगापुर पुलिस के इतला देने पर आपको पता चला? ये सेम गैंग है सर? देखें, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हम अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जो टाइकून 2FA की जो इन्फॉर्मेशन है ये तो ओरिजिनेट तो वहाँ से हुई है। उस पर फिर हमने एक बड़ी मेहनत की, बड़ा इसमें काम करते हुए ये सारे गैंग ट्रेस किया। जो गैंग में जो सेलर है, इनका प्रिंसिपल सेलर है, उसको अरेस्ट किया है और उसके बाद जिसने ये सारी डेवलप की थी ऐप उसको अरेस्ट किया है। कुछ इस गैंग में मिसिंग मेंबर्स हैं, गैंग मिसिंग, वो इस वक्त UAE फ़रार हैं। उनकी जो डेपुटेशन है और वहाँ से उनको गिरफ्तारी का वो हम तरक कर रहे हैं। नहीं ये नहीं ये सिंगापुर वाला ये अलग से। और इनकी तालीम क्या है? IT एक्सपर्ट है सारे या वैसे? देखिए, ये हमारे लिए भी बड़ी हैरानी की बात है। जिसने ये जो ऐप डेवलप की है वो गालिबन मैट्रिक पास है। मैट्रिक पास है, उसकी फर्दर उसकी एजुकेशन नहीं है। तो ये एक बस वो अनफॉर्चुनेट टैलेंट तो है लेकिन नेगेटिव साइड पे। ये बताइए कि इस वक्त जब NCCI ये बनाई गई या फॉर्मेट की गई तो उस वक्त जो कॉल सेंटर्स थे डिफरेंट कैंपेन्स के थ्रू जो नेशनली और इंटरनेशनली लोगों के साथ फ्रॉडेड एक्टिविटीज होती थी,
अभी इट्स आल्सो पार्ट ऑफ कैंपेन चलाते रहे ये लोग, उस पर कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को ये ग्रैब करते थे, आपने इन्हें पकड़ लिया, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉल सेंटर ना सिर्फ पंजाब में बल्कि बाहर भी पाकिस्तान पूरे भर में चल रहे हैं, उन पे ऑपरेशंस नहीं हो रहे। और देखिए मैं आपको आज बिल्कुल पॉलिसी स्टेटमेंट देता हूँ। जो कॉल सेंटर्स हैं उस पे हम एक जामिया पॉलिसी बना रहे हैं, जॉइंट टास्क फोर्स उस पर बन रही है, नेशनल लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी, एनसीसीए के जितने जोनस हैं जोनल लेवल पे। उस जेटीएफ में जो है वो तमाम जो है वो नुमाइंदे शरीक होंगे, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, और उस पर एक जॉइंट कार्रवाई होगी। उस सिलसिले में आपने अपने होमवर्क स्टार्ट कर दिए SCCP से और दीगर जो इदारे हैं, जो उनके रेगुलेटरी जो इदारे हैं, उनसे हमने तमाम मालूमात इकट्ठी कर ली हैं कि कौन कौन से यहाँ पे लीगल हैं और कौन से इलीगल हैं। उस पर इंशाल्लाह ताला ये आइंदा दिनों में आप देखेंगे कार्रवाई। ये बताइए मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, वो थोड़ा सा बताएं वो कानूनी लिहाज से क्या वो मजबूत केस बनेगा या कि आमतौर पर वही 418 19 तक आगे नहीं, इसमें जो इसमें जो मुतासरा लोग हैं वो नहीं इसमें मुद्दई तो हाँ, उसमें जो है वो जो इसमें जो सिंगापुर की गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें जो चीज़ इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई थी, उसमें स्टेट मुद्दई है, और जो एम्बेसीज़ के साथ जो फ्रॉड करने में मुलव्वस थे, ज़ाहिर है चूँकि वो पर्सनस के साथ फ्रॉड हो रहा था, उसमें हमारे पास मुद्दई मौजूद हैं। और हमने दीगर तमाम एम्बेसीज़ को भी लिखा है कि जो भी आपके विक्टिम्स हैं उनकी तफसील जो है वो हमें फ़राहम की जाएँ ताकि उन पे हम कार्रवाई करें। ये मुल्ज़मान थे, इनके साथ कोई एजेंट माफिया इन्वॉल्व था जो इन्फॉर्मेशन इन्हें किसी का डेटाबेस पे इन्हें शेयर करता था। इसके साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि इनसे अभी तक कितनी रिकवरी हो सकी है, आपके पास कोई कंप्लेनेंट भी आया है रिकवरी के लिए? मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 से 4 कंप्लेंट्स ने अप्रोच की है, और आज जब आपकी ये सारा चलेगा तो इंशाल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि जिन जिन के साथ ये फ्रॉड हुआ है वो हमें मज़ीद लोग भी अप्रोच करेंगे। कुछ एम्बेसीज़ के पास भी इंफॉर्मेशन मौजूद है जिसकी बुनियाद पे उन्होंने हमें शिकायत भी की थी कि इस तरह स्पूफिंग होके और हमारे नंबर पे कुछ कॉल डाइवर्शंस लगा के तो ये स्कैमिंग हो रही है। तो उनको भी हमने लिखा है कि जिन्होंने आपको अप्रोच किया है वो आप उन्हें डाइवर्ट कर दें टूवर्ड्स NCCIA। ये मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उसमें हम मज़ीद उसमें कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो IT इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, दूसरा बच्चा टैबलेट मोबाइल और इन चीज़ों में लगा रहता है, तो इन लोगों की ट्रेनिंग किस तरह से हुई है, और आप समझते हैं जो तरबीती इदारे हैं उन पर भी चेक रखने की ज़रूरत है? देखिए ये साइबर क्राइम अनफॉर्चुनेटली जो है वो पूरी दुनिया में ज़ाहिर ऐसा ही है, एक जहाँ पे टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है, हर चीज़ डिजिटाइज हो रही है, वहाँ पे साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ें तो ऐसे ही रहेंगी, और ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ या जो साइबर क्राइम को डील करने वाले जो इदारे हैं, ये उनका काम है कि उनको ये उनके खिलाफ जो है ये कार्रवाई करते रहें। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या किसी और को उसमें सर ये बता दें कि ये इंडिपेंडेंटली जो है वो काम करते थे या फिर मुख्तलिफ ये सफारत खानों के साथ जो है वो राब्ते में रहते थे? क्या उनके लोग भी जो है वो इनके साथ मुलव्वस थे इस सारे काम के अंदर, कि ये सिर्फ इंडिपेंडेंटली अपना ही काम करते थे? आपने बड़ा अहम सवाल पूछा। ये देखें, ये साइबर क्राइम जहाँ पे देखने में बहुत कम्प्लेक्स क्राइम लगता है, लेकिन ये है इंतहाई सादा क्राइम है। इसमें कोई इन्होंने लंबा चौड़ा इन्होंने ऐसा कोई एम्बेसी के जो एहलकार हैं उनको अपने साथ नहीं मिलाया हुआ था। एक बड़ा सादा सी बात है, एम्बेसी का जो नंबर है एम्बेसी की उस पर वेबसाइट पे मौजूद है, उस नंबर को इन्होंने एक फेक एम्बेसी की ईमेल बना के PTA को कहा कि इस नंबर पे डाइवर्शन लगा दें। ये मैं आपको बात बिल्कुल एक ओपन और सादा अल्फाज में बता रहा हूँ। डाइवर्शन लगाने के बाद वो जो एम्बेसी के नंबर पे कॉल जाती थी वो दर हकीकत कॉल इनके नंबर पे चली जाती थी। फिर वहाँ से ये व्हाट्सएप के ज़रिए ये अपने तमाम विक्टिम से रब्ता करते थे। जब विक्टिम्स को थोड़ा शक हो जाता था तो फिर उसी नंबर पे स्पूफिंग करके उस नंबर से कॉल आ जाती थी। तो ये एक ही कंपाउंड में इन्होंने बैठे बिठाए इन्होंने हज़ारों लोगों के साथ ये फ्रॉड किए, और इसकी हम मज़ीद जब हमें एम्बेसीज़ हमारे साथ जब इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी तो इंशाल्लाह फिर हम बेहतर पोजीशन में होंगे। नहीं, ये मुख्तलिफ शहरों से पकड़े गए। देखिए टाइकून 2 FA अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे, बड़ी फेमस हैकिंग ऐप है, और जब आपने ये ऐप किसी को भिजवाई और उसने लिंक पे क्लिक किया तो आपके और जो स्कैमर है उसके मोबाइल के दरमियान एक वर्चुअल आपका जो है सारा जो डाटा है वो उस तक चला जाता है। तो उस हवाले से ये जो है वो सारा जिनको ये सेल करते थे और फिर वो जो आगे सारे कार्रवाइयाँ करते थे, एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड ऐप है और पूरी दुनिया में बैन है।